So we go ahead. Okay, 10.3 mass. So we have learned. सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. So we have learned in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia. Clear है? Yes or no? Yes, sir. जितना mass रहेगा उतना inertia रहेगा. So we have also learned that greater the mass, the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space. तो मास जो है वो हमेशा सेम रहता है. हेलो, Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. मास remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space. ठीक है, क्लियर है? चलिए ये सेम चीज आप लोग 5 बार बोलिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है ना. बोलिए, मास रिमेन्स सेम. The mass remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space. The mass remains same object is on the whether the earth, object is on or earth, the even moon in or outer even in space. outer space. Mass remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in the outer It space. remains the same whether Mass the remains object the is same on whether the the object is on the earth, the moon or even in outer space. Mass remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी 5 बार बोल दो. Thus the mass of an object is constant and does not change. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. Thus the mass of खुशी का an आवाज सुनाई object दे is रहा है. खुशी constant आप and भी does not change from place to place. और 3 बार. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो एक ऑब्जेक्ट है, वो कहीं पे भी जाएगा, उसका मास जो है दैट इज m, वो सेम ही रहेगा. ठीक है, वेदर इट इज ऑन मून, अर्थ, है ना. ठीक है, कहीं पे भी रहेगा, है ना, मून, अर्थ या सन पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास जो है सेम रहेगा. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अभी बताइए कि G(m1 m2 by r square) होता ना, फोर्स है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना, G(m1 m2 by r square). ठीक है, तो इसका मतलब कि ग्रेविटी इज एग्जिस्टिंग. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो एक स्पेशल केस है जहां पे ग्रेविटी सपोज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, हेलो. Yes, sir. Yes, ओके, केवल वहां पे क्या हो जाएगा हमारा मास? मून, अर्थ और सन, हर जगह क्या है? मास जो है
सॉरी, हाँ हर जगह मास क्या है? Sir, same. Constant. कांस्टेंट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, और सपोज एक जगह में ग्रेविटेशन नहीं है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे क्या हो जाएगा मास? Sir, same ही रहेगा. नहीं, ग्रेविटेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग भाई, समझ में नहीं आ रहा है? हेलो, Sir, so mass doesn't depends on any type of force now. on gravitation? Mass depends upon gravitation, yes or no? सिंपल है भाई, है ना? Gm1m2 by r² है ना, मास इज डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटेशन, ठीक है। और सपोज अभी ग्रेविटेशन एक जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वैसे केस में, दीज आर स्पेशल केसेस, वैसे केस में मास जो है हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा या जीरो, या कुछ भी हो सकता है, बोलिए। जल्दी बोलिए, सिंपल सा है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। फोर्स जीरो हो गया ना, हेलो, Yes, sir. Gm1m2 by r² जीरो हो गया, F इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या, तो अब बताओ मास क्या हो गया? Sir, zero. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. खुशी दस, हेलो, खुशी इज देयर, नॉट देयर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वेट, ओके। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. so we know that the earth attracts every object with a certain force, clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना था हम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इवन इन आउटर स्पेस, समझ में आ रहा है? आउटर Yes, स्पेस में sir. क्या है? ग्रेविटेशन जीरो है, ठीक है, लेकिन Yes, मास sir. जो है सेम रहेगा। अरे समझ में, Yes, sir. अभी पढ़ा ना 5 बार, Yes, sir. चलो 5 बार फिर से पढ़ लो, पढ़ लो। Mass remains the same whether the object Mass is on remains the the same earth, whether the the object moon, is or on the even earth, in the outer moon, or space. even in Mass outer remains space. the Mass same whether remains the the same object whether the is on the object is earth, on the moon, or earth, even the in moon, outer or in space. outer space. Mass remains Mass the remains same the whether same the whether the object object is is on the on the earth, earth, the the moon, moon, or or even even in in outer outer space. space. Mass Mass remains remains the the same whether the same whether object the is on object the is on earth, the the moon, earth, or the even moon, in or outer even outer space. space. Mass Mass remains remains the same the whether the same object whether is the on the object earth, is the on the moon, or earth, even in on outer moon, space. or even in outer space. 4 बार हुआ है। Mass remains the same whether the object is on the earth, the Mass moon, remains or the even same in whether the outer object space. is on the earth, the moon, or even in outer space. चलिए अपने बुक में, ठीक है, Yes, sir. ये लिख लो, Yes, sir. ठीक है। पेन से चाहिए तो पेन से लिख लो, नहीं तो पेंसिल से चाहिए तो पेंसिल से लिख लो। मास डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, और 5 बार बोल दो, ठीक है। पहले लिख लो, बुक में लिख लो, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लो, और 5 बार बोल दो। Mass doesn't depend on gravitational force. 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 ठीक है, क्लियर हो गया, Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो मास आपका कहीं पे भी जाइए, मास कितना रहेगा? Sir, हेलो, same रहेगा. सेम रहेगा, क्लियर है? Yes, Sir, formula sir F equals G m1 m2 by r square. इससे अगर हम लोग मास निकालते हैं तो मास का प्रोडक्ट तो जीरो हो जाता है ना? हाँ ये है ना,
Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अभी अगर F मेरा 0 हो गया, ठीक है, तो क्या क्या 0 हो सकता है? या तो मास 0 हो जाए, हेलो, Yes, sir. Yes, या sir. तो R जो है इन्फिनिटी हो जाए, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस खत्म। Yes, sir. Yes, या sir. फिर G 0 हो जाए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, ठीक है, तो ये भी आपको सो नाउ पॉइंट इज दैट देयर आर सर्टेन मीडियम्स व्हिच डू नॉट अलाउ ग्रेविटेशनल फोर्स टू वर्क, समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. अभी एग्जैक्टली वहां पे क्या 0 होता है, ठीक है, जो भी 0 होता हो, पॉइंट है कि मेरा M 0 नहीं होता, समझ में आया? Yes, sir. M 0 नहीं होता, ये क्लियर रखो। सर क्यों नहीं 0 होता है? हाँ, क्यों नहीं 0 होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास है ना एक बोड़ा है, बोड़ा क्या है? सैक, सैक, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सैक ऑफ सीमेंट है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी सीमेंट में क्या है ना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप you go and like you keep on analyzing it, so on like microscopic level there are molecules and atoms, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है, कुछ ना कुछ तो है ना, ये सॉलिड, सम सॉलिड ऑब्जेक्ट इज देयर, यस और नो? Yes, sir. है कि Yes, नहीं, sir. है ना? Yes. तो अभी आप बताओ, कहीं पे भी मैं जाऊंगा क्या ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये क्या वैनिश हो जाएगा? No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. वैनिश होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो है ना, हम लोग मास का प्रॉपर्टीज अगर हम लोग पढ़ें तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, है ना, इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मास इज दैट इट ऑक्युपाइज स्पेस, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अभी मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है अगर स्पेस में जाएगा तो क्या स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? तो मास तो है ही ना, वो ऑब्जेक्ट तो है ही। Yes, sir. हाँ, Yes, एक sir. चीज हो रहा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो फोर्स वो मास नहीं लगा पा रहा है, जो भी कंडीशन हो, जो भी रीजन, वो एक फोर्स नहीं लगा पा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि वो मास नहीं है, दैट डजंट मीन कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब वैनिश हो गया, 0 हो गया, समझ में आया? वो गायब हो गया, वो मैं जो सीमेंट का बोरी लेके गया स्पेस में, वो सीमेंट का बोरी गायब हो गया, फिर जब मैं आया यहाँ पे तो एकाएक आ गया, वैसा तो नहीं होता। No, No, समझ sir. में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. so mass is an intrinsic property of matter, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, आप लोग जब इस पे चढ़े हो, मेरी गो राउंड तारामाची पे चढ़े हो, Yes, sir. तो जब नीचे हम लोग आते हैं तो हम लोग वेटलेस लगता है, हम लोग, है ना, हम लोग को लगता है कि हवा, है ना, कुछ कुछ, है ना, कुछ, है ना, ऐसा लगता है कि वी आर काइंड ऑफ जस्ट थ्रोन इनटू द एयर, समझ में आ रहा है? वेटलेसनेस, तो Yes, sir. है ना, सो दैट इज दैट हाउ मच फोर्स वी आर एबल टू एक्सर्ट, ठीक है, तो वो है वेट। थोड़ा और पढ़ेंगे, वेट के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब हम लोग तारामाची में नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग गायब हो गए, वैसा थोड़ी होता, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Point is कि wherever molecules and atoms, or even one electron is there, there has to be some space has to be occupied by that matter, and it has to have some mass. Simple. समझ में आया? Yes, sir. Hello. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है एक्चुअली, जब हम लोग कोई मीडियम में जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब भी होता है, जो भी हो, तो उसमें एक और टर्म आ जाता है दैट इज के, ठीक है, के G m1m2/r², ऐसा करके, है ना, कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। पॉइंट है कि वो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट जो है ना, समटाइम्स द कांस्टेंट कैन बी जीरो आल्सो। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट जो कर रहे हैं कर लो, नोट डाउन कर लो। सर हो गया। Yes, sir. ओके, नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी हम लोग वेट पे, we know that the earth attracts every object with a certain force, and this force depends upon the mass of the object and the acceleration due to the gravity. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Clear है? Yes, sir. Weight का Yes, definition, sir. ठीक है? चलिए 5 बार बोल दीजिए। The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. The weight of an object is the force with which
it is attracted towards the earth. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. प्रत्युष का एक बचा है. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो जो G m1 m2 by r स्क्वायर होता ना. हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. G m1 में Yes, m2 sir. by r स्क्वायर होता है. वो हो गया वेट. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर तो इससे तो एक क्वेश्चन भी अराइज होता है. हाँ, बहुत क्वेश्चन अराइज हो सकता है. बोलिए. सर जब अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग मतलब वो सेंटर टू सेंटर अप्लाई होता है ना, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग उसके सेंटर में ही चले जाएं? ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड अर्थ है. अगर अर्थ खोखला रहता चले जाते. गड्ढा आप करते रहो अर्थ में, आप नीचे जाते रहोगे. समझ में आया? Yes, Hello. sir. Yes, sir. है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. आया. जैसे कि मैग्नेट बताओ कहाँ कहाँ होता है. मैग्नेट 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 होता है ना. पेंसिल बॉक्स होता है ना कोई कोई मैग्नेटिक. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो पेंसिल बॉक्स का जो लिड होता है वो ऊपर में ही क्यों रुक जाता है ना. वो पूरा मैग्नेट का सेंटर में क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है ना पेंसिल बॉक्स का वो जो शेप है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. क्लियर है? Yes, sir. Yes, और क्या sir. क्वेश्चन हो गया? ठीक. Yes, क्वेश्चन sir. चलेगा. Sir, actually, हाँ. sir, actually, I wanted to know what normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन पढ़े हैं क्या? अभी तक आया है क्या? No, sir. आएगा तो पढ़ लेंगे. ठीक है. Yes, sir. सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. लेकिन 3-4 प्रॉपर्टी होता है, 2-3 प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल रिएक्शन का, वो पढ़ना पड़ेगा. वो हमेशा नॉर्मल लगेगा, मतलब 90 डिग्री लगेगा, है ना. ऐसा ऐसा कुछ होगा. ठीक है. चलिए ये समझ में आया. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स विथ व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. No, sir. We know that F is equal to M into A. That is F equals M into G. इस केस में ठीक है, towards the earth Yes, G से attract Yes, हो रहा है. sir. The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. It is denoted by W. Substituting the same in equation 10.14, we have W equals M into G. Sorry. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ा जाए. As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is the same as that of force. That is Newton. Clear है? Force है, जो weight है वो भी एक force ही है, इसीलिए Newton है. समझ में आ रहा है? yes or no? Yes, sir. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग पढ़े ना, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन में आता है. yes or no? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. फोर्स हमेशा न्यूटन में आता है. किसी आप गाड़ी को धक्का दे रहे हो तो हम लोग न्यूटन में ही लिखेंगे फोर्स. समझ में आ रहा है? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो वही है पॉइंट, सेम पॉइंट. The SI unit of weight is the same as that of force because weight is also a force. समझ में आया?
Yes, sir. That is Newton. The weight is a force acting vertically downwards and it has both magnitude and direction. Clear? Yes, sir. बाकी लोग सब लोग clear है? Yes, sir. We have learned that the value of g is constant at a given place. हाँ, at a given place constant रहेगा क्योंकि r fixed है ना. Clear है? Yes, Yes, sir. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass, say m of the object, that is w is proportional to mass. It is due to this reason that at a given place, we can use the weight of an object as a measure of its mass. ये क्या बोल रहा है थोड़ा सा और. ठीक है, तो एट अ गिवन प्लेस पे क्या हो गया, जैसे कि ये अर्थ है ना, हम लोग हैं सपोज यहाँ पे है, ओके, तो यहाँ से जो दूरी है d वो फिक्स हो गया, यस और नो? yes, sir. ठीक है, तो gm1 m2 by r स्क्वायर, ओके, तो हमारा g का वैल्यू क्या आता है, ये मानो कि इस आदमी का मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो आ जाता है g मास ऑफ ऑब्जेक्ट into mass of earth divided by r square, d square मानो, d is the ये Yes, divided Yes, by sir. mass of object, ये हो गया ना छोटू जी. Yes, sir. yes, sir. तो यही आता था g mass of earth divided by distance. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो therefore at a given place, ठीक है, so we have learned that the value of g is constant at a given place. Yes, we have learned it. How we have learned it? क्या आता है? So we know also क्या आता है? We know it is g mass of earth divided by distance from earth center square. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कांस्टेंट हो गया. क्लियर है? Yes, sir. है ना? Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass m of the object. हाँ, क्योंकि m into g आएगा. ये Yes, g yes, का sir. ये g का फॉर्मूला मैंने लगाया, तो m into g होगा. तो Yes, sir. weight जो है, weight is m into g. तो मास बढ़ेगा, तो weight बढ़ता जाएगा. क्लियर है? Yes or no? Yes, yes, sir. sir. It is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. अभी क्या है कि अगर मुझे पता है कि रेडियस या फिर डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर क्या है, ये हमको एक जगह पे पता है, और मास ऑफ अर्थ हमको अगर पता है, ठीक है, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो हम फोर्स मेजर करके उस ऑब्जेक्ट का मास निकाल लेंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? उल्टा उल्टा कर रहे हैं हम लोग. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो वही लिखा हुआ है कि we can use the weight of an object as a measure of its mass. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The mass of an object remains the same everywhere. ये क्लियर है? ये तो 100% Yes, sir. क्लियर होना Yes. चाहिए, नहीं तो इसको Yes, क्लियर sir. नहीं तो 20 बार बोलना पड़ेगा. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? That is on the earth and on any planet where its weight depends upon its location, because g depends on its location. The mass of an object remains the same everywhere. That is on the earth and on any planet. Whereas its weight, लेकिन weight जो है वो acceleration due to gravity पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए लोकेशन पे डिपेंड करता है. समझ में आया सब? Yes, sir. Yes, sir. 100% आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, चलो sir. इसको थोड़ा 5 बार बोल दो अच्छे से. ये वाला जो ब्राउन से किया मैं.
The mass of an object The mass of an object remains the same everywhere. That is on the earth and on any planet, whereas its weight depends on its location because g depends on The mass location. of an object The mass remains of an the same object remains everywhere, the same that is everywhere. on the That earth is and on the any earth and planet, on any whereas planet, its whereas its weight weight depends on its location because g depends on depends on location. location. The mass of The an mass of an object remains object the same remains the same everywhere, that everywhere. is That is on on the the earth earth and and on on any any planet, planet, whereas whereas its its mass, whereas weight its depends on its weight depends location on because its g depends on location location. because g depends on The location. mass of an object The remains the mass of same an object remains everywhere, the that same is on the everywhere. earth That is and on on the any earth planet, and any whereas its planet, weight depends whereas on its its weight location depends on its because location because g g depends depends on on location. The location. mass of an The object mass of an remains the object same remains the everywhere, same that is on the everywhere. earth That and is on on the any earth planet, and on any whereas planet, its weight whereas its depends on weight its location depends because on its location because because g g depends on depends on location. location. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जो लिखना है लिख लो, फिर मिटाते हैं. Sir, हो गया. बाकी लोग Yes, sir. हो गया. Yes, sir. आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा देते हैं. Yes, sir. Yes, sir. जब हम पढ़ाते हैं तो समझ में आता है ना. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. अभी ये सब एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो मून पे हो, जुपिटर पे हो, अर्थ पे हो, सैटर्न पे हो, सन पे हो, सब बना लेंगे. क्या दिक्कत है? मास सेम रहेगा, केवल हमको m इंटू जी करना है, निकाल देने का. m इंटू जी क्या होता है भाई? gm/m2/r² होता है. और क्या समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. वही है, सेम चीज करेंगे, है ना. gm/m2/r² को ही, है ना, थोड़ा इधर उधर करके लिख देंगे, हो गया काम खत्म. इसमें हमको बस एक चीज याद रखना चाहिए कि बड़ा जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ द मून और अर्थ, चाहे जहां पे भी रहे, है ना, डिवाइडेड बाय Yes, sir. r², ये रहेगा छोटू जी ऑफ दैट प्लेनेट. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. Yes, sir. तो क्या है, कुछ नया बात नहीं है, एक ही बात है, उसी को बार बार बता रहे हैं. और समझ में आ रहा है? Yes, sir. पढ़ाने के लिए चाहिए ना, है कि नहीं? वही है. Yes, sir. This is equal to acceleration of due to gravity due on that planet. समझ में आया? Sir, R square. क्या? अरे हाँ, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो लिख लो, लिख लो. कुछ नया चीज नहीं है, वही है. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो गया, डन. समझ में आ गया? Yes, हेलो. sir. Yes, sir. बस खाली यही याद रखना है कि जहाँ पे ग्रेविटी नहीं रहेगा वहां पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? Constant. क्या हो जाएगा, बोलो. सर, जो उसका मास एक्चुअल था पहले, वही रहेगा. ए भाई, प्रत्युष साहब बोलो. जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहां पे मास केवल क्या है, हो जाएगा. केवल हम लोग को यही याद रखना है कि नहीं. क्या हुआ भाई? हेलो प्रत्युष, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. बोल रहे हैं कि केवल एक चीज हम लोग को याद रखना है कि जहां पे ग्रेविटी नहीं होगा वहां पे मास क्या हो जाएगा? Sir, same रहेगा. हाँ, ठीक है ना, सेम ही रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. यही याद रखना. ठीक है. Yes, मास sir. जो है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ऐसा है. हो गया, आगे बढ़ा जाए. Yes, sir. चलो. So we have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the
अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है बोलो, जल्दी बोलो। अरे भैया फोर्स बोलो। अरे बोलो बोलो, फोर्स बोलो ना, प्रत्युष आप Sir, बोलो। force, हाँ, क्या होता है? अरे sir, a pull or a pull is known as force. हाँ हाँ, अरे भैया कुछ बोलिए ना। प्रत्युष, Yes, sir. क्या है फोर्स? जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, कितना फोर्स से कर रहा है भाई, बोलो। गाने तो हम बना देते हैं। अरे हेलो, अब बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. प्रत्युष आप म्यूट मत करना। Yes, आप sir. बोलो कि म्यूट मत करो, कोई Yes, आ रहा है sir. बैकग्राउंड से आवाज, कोई दिक्कत नहीं। आप Yes, बोलो sir. कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है? क्या है फॉर्मूला बोलो। Sir, the mass of an object into g. है ना, G(m1m2/r स्क्वायर), और क्या, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. टेंशन लेने का क्या जरूरत है भाई? In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. कोई बड़ा चीज थोड़ी है, सेम ही चीज बोल रहे हैं, है ना। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. the mass of the moon is less than that of the earth. Due to this, the moon exerts lesser force of attraction on Earth. Clear है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Let the mass of an object be m. Let its weight on the moon be wm. Let the mass of the moon be m. ठीक है। m Yes, sir. m and its radius be rm. By applying the universal of gravitation, the weight of the object on the moon will be g m m. Clear है? Yes, sir. Clear है कि नहीं है भाई? Yes, sir. Let the weight of the same object on the earth be we. The mass of the earth is ये हो गया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये हो गया क्या ना, WM ये हो गया, WE ये हो गया, डिवाइड कर दिए तो 1/6 आ गया। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये हम क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों को प्रूव करने के लिए, तो करना बैठने को। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सब कुछ हम ही करेंगे, अच्छा चीज नहीं है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg। व्हाट इज वेट ऑन अर्थ? बोलो क्या है? हो गया क्लियर है? 98 न्यूटन। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन मेजर सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट वुड बी वेट? तो यह 1/6 आ जाता है, ठीक है ना, पॉइंट ये, ठीक है। तो 1/6 Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दो इस पे, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे तो खत्म हो गया भाई, मास वेट इतना ही था। कब है फिर अगला क्लास? कब है? आज क्या है, सैटरडे है। Yes, sir. परसों है मंडे को। सर मंडे। कितना पेज बाकी है? चलो अच्छा है। थर्सडे एंड प्रेशर, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली? हम तो नहीं किए वंडर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलो। Why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chain? Why a truck or motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concept. ठीक है, अभी क्या नया कॉन्सेप्ट है ना, नया क्लास में करते हैं, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। आज थोड़ा उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा बना के आप लोगों को भेज देने के लिए, ठीक है। वैसे ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन Yes, sir. 1 2 हो गया, और एक Yes, क्वेश्चन sir. हो गया कि प्रूव दैट 1/6 है। समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, केवल ये वाला टेबल यूज करके बना देना, नीचे मत देखना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया खत्म? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए थर्स्ट एंड प्रेशर इज अच्छा है. प्रेशर इन फ्लूइड्स इज an interesting topic, more interesting topic. Every topic is interesting. Okay, thank you. तो अभी तो है नहीं ना आप लोगों का एग्जाम, बताओ. नो सर. है ना, अभी 1-1.5 महीना होगा ना, 1.5-2 महीना के बाद ही होगा ना. यस सर. Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच. टाटा, बाय बाय. कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? No, sir. नो सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you.